Okay, chalo, let me start the application. So first I will start my JSON server. Okay, package.json में हम लोगों ने already start server लिखा है, npm run start hyphen server. Okay, तो हमारा JSON server start हो गया and then it will start npm start. Okay, so our application will start. Okay, चलो अभी लास्ट टाइम अगर हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोग ने फॉर्म हैंडलिंग किया था, राइट? Like how many ways you can create forms in Angular, and उसमें से एक हम लोगों ने देखा था which is your template driven form. Okay, reviews के लिए we have created template driven forms. उसमें हम लोगों ने फॉर्म के कंट्रोल कैसे बनाते हैं, फॉर्म के how do we create a form, entire form, उसका status, validation status, how do you maintain the validation status, okay, और फिर based on that how do you show error messages as well, okay, like this. So that we have seen last time. So that was the form created using template driven form. Okay, so it was a template driven approach. Now today we are going to learn about reactive approach. Okay, which is most use, useful if you have a lot of form controls and your form is huge. You have complex form and you have like conditional form as well. Like sometimes एक कंट्रोल के ऊपर दूसरा कंट्रोल डिपेंडेंट होगा, so that kind of controls can also have. And if you want to create dynamic forms as well, like questionnaire जैसा होता है जहाँ पे you create questionnaires and उसके लिए forms में आपको controls dynamically add करने पड़ते हैं. So that type of form controls can also be created using reactive forms. Okay, and that is the most powerful feature in Angular forms. Okay. So what we will do, we will create a separate form for this. We have a profile page separately. Here we will create a profile form. Okay, and that form will be based on your reactive forms. Okay. So for reactive forms, what we need to do is first thing is you need to import a module. Okay. जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि लाइक फॉर टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स वी नीड फॉर्म्स मॉड्यूल, वैसे ही फॉर रिएक्टिव फॉर्म्स वी नीड reactive forms module. Okay, so we should import reactive forms module. When you import it you will get all the forms related stuff. Okay, last time मैंने आपको angular.io के साइट पे I shown you the core classes for forms. Okay, let me show you again. In the developer guides, forms, introduction. Yeah, these are the 4 base classes. Okay, so last time जैसे मैंने बोला था कि template driven forms ये internally ये सारे classes को use करता है, like form control, form group, form array. Okay, and control value accessor as well. Yeah, but form control is actually the is the control is the जैसे आपका element होता है वो element के ऊपर wrapper होता है this form control, and actually tracks the value or status of that validation status of that for particular form control. Okay. Form group ये entire collection of form controls होता है, and form array is basically collection of same form control. Okay, मतलब कि जैसे एड्रेस आप बोलते हैं ना, बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, सेम कंट्रोल्स है. आपका मोबाइल नंबर मल्टीपल डालते हो तो सेम मोबाइल नंबर डालते हैं. ओके, सो दैट इज द फॉर्म एड. सो यही सारे कंट्रोल्स बना के, लाइक यही सारे कंट्रोल्स या यही सारे क्लासेस यूज करके वी विल क्रिएट रिएक्टिव फॉर्म्स. ओके, सो हियर इन प्रोफाइल, let's go to profile component, and here I will add, let's say, h3 profile. Okay, and इसके नीचे I'll add the form. Okay, अभी फॉर्म के लिए मैं यहाँ से सेम, फिर लेट्स से कि हम लोग वहीं से कॉपी कर लेते हैं हमारे बूटस्ट्रैप में से, और फिर हम लोग एडिट कर लेंगे. गो टू डॉक्स एंड फॉर्म्स ओवरव्यू. I'll copy this one and paste. Okay, so this is our form. Okay, but यहाँ पे हम लोग को जैसे प्रोफाइल के लिए we will take, let's say for now we will take 4 controls. एक first name, last name, email and password. Let's take these 4 controls and then later on we will add some controls into it. Okay, so first जैसे बोला कि like in name, first name,
I'll write first name. Here also I'll specify first name. ये निकाल देते हैं. This also I'll remove it. This is your first control. This is going to be a text, okay, not email. So it's a text. This is the last name. And here I'll say email. Okay. Usually email. Here also will have email. Okay. And last one is password. तो password के already हमारे पास है. Okay. So this is a password control and your submit button. Okay. So if you save it, you will see the entire form here. Okay. Now इस पे हम लोग को अभी controls add कर. So जैसे हम लोगों ने देखा था कि template driven form में the entire controls actually we create them inside your template itself. Okay, यहाँ पे we write ng model and फिर हमारा जो model या फिर class बनाते हैं उसका जो field होता है वो हम लोग यहाँ पे attach कर देते हैं ng model पे and then वो internally form control create करता है. यहाँ पे we don't create any control. Okay, that's the reason we call it as a template driven form. Whereas if you come to profile component, here we are going to create reactive forms. So your entire control will be created by your profile component.ts class file and will be used by your HTML file. Okay. So पहले मैं ना ये फॉर्म बनाने के पहले चलो हम लोग ये पहले फॉर्म मैंने आपको दिखा दिया. But before doing this form, let's see how to create a simple form control. Okay. ये फॉर्म तो मैंने जस्ट अभी के लिए बनाया, बाद में हम लोग इसको यूज करेंगे. But for now, just let's see कि how to create a simple form control in reactive form. Okay. So let's say कि मैंने यहाँ पे एक लेबल या फिर लेबल जो है इनपुट ही डाल दिया. Okay. इनपुट टेक्स्ट डाल दिया and इसको मुझे form control बनाना है. So for that, I'll create a control here first. Okay. So name, let's say control name ctrl equals to, you will write to write new form control. Okay. So just now we saw like ये आपका control class थोड़ी देर पहले हम लोगों ने angular.io पे देखा था. So this will be a control class which we will use to create a control. Okay. And in this like first parameter control का हमेशा एक optional होता है, नहीं भेजा तो null हो जाएगा. It's a default value जो आपको specify करना. Okay. So now nowadays form controls are like from 14 onwards. Your form controls are strictly typed. So that means अगर मैं यहाँ पे जो वैल्यू स्पेसिफाई करूंगा वो टाइप का ये फॉर्म कंट्रोल रहेगा. मतलब आप देखोगे फॉर्म कंट्रोल इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग और नल. ओके. बट अगर निकाल देता हो तो इट विल ओनली से एनी, मतलब ये कोई किसी भी टाइप का वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है. इफ आई स्पेसिफाई सम नंबर, so the name control will become number or null. Okay. So that's how your form controls are strictly typed. Previously we don't have this strictly typed form controls. पहले हमारे पास इतने strictly typed नहीं रहते थे. Okay. But nowadays we have a strictly typed form control. Okay. So yeah, this is your control. Now my control is ready. I just now have to use this control for my input element. Okay. How do I use it? Template driven form के लिए हम लोग ng model use करते थे. But for reactive form we will use brackets में form control. Okay. Equals to your form control name. Okay. Which is name ctr. बस आपका फॉर्म कंट्रोल क्रिएट हो गया, आपका फॉर्म कंट्रोल ऐड हो गया. एंड जस्ट प्रिंट दिस नेम कंट्रोल हियर जेसन में, सो दैट हम लोग को वैल्यू मेरे देख सकते हो, आपको पूरा वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है नेम कंट्रोल का. हियर यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स लाइक उसका स्टेटस, एरर्स, फिर उसका वैल्यू भी रहेगा. देखो वैल्यू. ओके. सो इफ आई एंटर एनीथिंग हियर, लेट्स से माय नेम, यू विल सी द वैल्यू इज चेंजिंग एंड इट्स रियल टाइम. ओके. रियल टाइम में वैल्यू चेंज हो रहा है. अगर मैं यहाँ पे सिंपली सिर्फ नेम कंट्रोल डॉट वैल्यू लिख दूंगा, आपको देखो ये स्ट्रिक्टली टाइप होने की वजह से आपको सजेशंस भी आ जाएंगे वैल्यू. तो वैल्यू लिख दो, आपको यहाँ पे वैल्यू भी ब्लैंक है. सेकंड राइट एनी वैल्यू एंड इट विल बी डिस्प्लेड. अभी यहाँ पे मैंने ब्लैंक लिखा है, सिर्फ ब्लैंक वैल्यू. बट इफ आई वांट टू पुट सम डिफॉल्ट वैल्यू, सो यू कैन पुट इट लाइक मैंने डाल दिया, डायरेक्टली डाल दिया तो आपको डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे. Okay. Even if you refresh, the default value will be there. Okay. So that's how you can create your form control using reactive form. Understood everyone how to create a reactive form control? समझा सब लोग को?
अच्छा यस ओके, सो जस्ट इतना कर लो, ये बाद में कर लेते हैं, पहले इतना करो। हाँ, उसके लिए आपको और एक चीज करना पड़ेगा, आपको ऐप मॉड्यूल में जाके रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये भूलना मत, नहीं तो चलेगा नहीं। डन डन एवरीवन। हेलो सर, एरर ही आ रहा है मुझे, तो भी रीड नहीं कर पा रहा है शायद से फॉर्म कंट्रोल पे। फॉर्म कंट्रोल पे आप दिखाओ हाँ, मुझे। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, एक मिनट। किस पे ही एरर आ रहा है? एक मिनट, अभी स्क्रीन दिख रहा है। हाँ ओके, आपका टीएस फाइल दिखा ना, नेम ctrl form control। okay, have you imported for reactive forms module? अच्छा, नीचे इंपोर्ट नहीं किया ना, वहां पे इंपोर्ट किया, लेकिन इन मॉड्यूल यू शुड इंपोर्ट इट। ऐप मॉड्यूल में जाना, यहाँ पे ऐप, ऐप मॉड्यूल नीचे। ओ यहाँ पे, ओ हाँ, इंपोर्ट सारे में नहीं डाला, इंपोर्ट सारे। ओ ओके ओके सर। हाँ ठीक। और मेरा सर जेसन सर्वर फिर भी स्टार्ट ही नहीं हो रहा, अगर मैं फिर भी लोड कर रहा हूँ ना। हाँ अ, फिर भी यही आ रहा है। अभी एनपीएम स्टार्ट तो किया मैंने प्रॉपर। आपका जेसन सर्वर चालू है, कहाँ पे है? यही से किया था मैंने, जो आपने जैसे किया अच्छा, ना। हाँ तो चालू करना है, उसको चालू रखना है, आपने बंद नहीं करना है। अभी किया बंद मैंने जस्ट अभी। हाँ यही करना है ना, एनपीएम रन स्टार्ट। तो नहीं नहीं, 42 हाइफन सर्वर है, स्पेस नहीं है, हाइफन है सर। स्पेस नहीं है। अच्छा ओके, स्टार्ट है। जेसन जेसन सर्वर सर्वर। इंस्टॉल नहीं है क्या किसमें? npm जेसन सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm i जेसन सर्वर।
ठीक है सर, मैं करता हूँ ये। ठीक है, शायद वो कमांड स्पेस था इसलिए। थैंक यू। वेलकम। Okay, so is everyone done? I hope हुआ रहेगा अभी। चलिए, so this is how you can create a control. Okay, now what if you want to update the control value, okay, by let's say by clicking on some button. Okay, अगर किसी बटन के क्लिक पे या फिर किसी इवेंट के ऊपर अगर आपको कंट्रोल का वैल्यू चेंज करना है डायनामिकली, so how do you change it? So let's say I have a button here, okay, and update name. इसके अंदर I'll add a click event and I'll say update name function. Okay, जो यहाँ पे बना लेते हैं update name. Okay, and यहाँ पे now how do you update the name of your control? To update the name of control, you can use this dot name control dot set value. Okay, we have a set value function which will set the value of your control. Okay, तो अगर आपने ऐसे लिख दिया, जब मैं क्लिक करूंगा बटन पे, let's say if I click on this button, you will see the value of the control is changed. Okay, so if you want to change the value by clicking on some button or some event, you can change it by using set value function. Understood? समझा सबको? यस सर। ट्राई करके देख लो। डन हो गया? यस सर। ओके, cool. ठीक है, so this is how you can create a simple form control, okay, by using a control. Okay, but what if you want to create a lot of form controls and you want to group them in a form? Okay, then in that case, how do you implement it? Okay. So I'll just comment all of this and we'll jump back to our this form. Okay, so this is the form where I want to add all the form controls, okay, or let's say all the form controls in a single form. Sorry. So यहाँ पे how do you create it? First of all, you need to create a form controls here. You can see we have a 4 controls: first name, last name, email, and password. Now, how do you create controls? You can create a control like this, but since they are all grouped into one form, you can use form group for that. Okay, so let's say I'll create a profile form here equals to new form group. Okay, the form group contains controls. Okay, so it contains controls, and controls is an object. Okay, object. Here the control is nothing but a key value pair. Okay, so you need to specify the key. So let's say I specify name colon and then the value. Value is nothing but your new form control. Okay, which we specified here. Okay, the same. Then comma and then so for it's the first name, not name. So first name, then last name, then it is same new form control. Okay, default value is blank, and then email,
Again, new form control is also blank. Same goes with password. Okay. So here I'll say password. Okay. This is how I created all the form controls. Now, how do I use this form controls and form group into my HTML file? So here, as you can see, form is a group of form controls. So I can attach form group to this form element. Okay. How do I attach it? The same way we have done for form control. Okay. So we'll write form group here. Okay. Equals to profile form. Okay. So this is my profile form group. Now I need to specify control for every, like form control for every input element, because I should know like which input element will refer to which form control, right? So that should be specified. So here I'll say form control name. In this case, I'm specifying form control name, not in square brackets form control, because the form control name will actually look the name inside profile form. Okay, so you can consider that is a profile form object, and inside that I have first name as a key. So like if you remember, we saw like this profile form like this. This is object, and if you want to access the key from it, we write first name like this, or else we can specify the another way by using square brackets, and we can specify first name like this. Okay, so this first name is nothing but a key name. Okay, key. So that name, first name, we are specifying here. Okay, and this is string. So that's the reason I'm not writing it inside a square bracket. If I write it inside a square bracket, I will have to wrap it in a single quote or double quote. Okay, because it's a string key. Okay, and we are not using like property binding syntax here, so we can directly write a value here. So this will be a string for form control. So this will be like profile form, and inside that we have a first name. Okay, similarly we can do it for last name and email and password as well. So here I'll specify last name, email, and password. Okay, so in this way, my profile form is created. You can just console log it. You will get the value. Right now, I won't get it because I think it is a circular dependency. Okay, so I think I should get dot value as its value. So if I say dot value, then the entire object will be printed. And see, I'm getting entire object here. Now, in the when we have done for template driven form, in the object was blank because we were passing blank object. Now here, as you can see, the reactive forms are already structured. Okay, so you will get value in a structured format itself. In the uh, first thing is, so here I can specify the values. You can see they are getting updated real time. Okay, and then this, and then admin 123 and 3. Okay, so this is how you can update your form control. Basically you can add your form controls or form group to your entire form. Okay, understood everyone how to create a form group and add form controls into it, and how do we attach that form group to your form control? Yes, sir. Okay, good. Yes, sir. ठीक है, कर लो ये, then आगे बढ़ेंगे. Just write it in a separate line.
सर चालू है तो सर डन सर। ओके चलेगा हो गया सबका चलो let's see we saw like how to add control form control and form group. Now let's see how do you submit a form. So it's the same thing that we have done for a review form as well. So in the review form we have submitted using ng submit. The same way we can submit form here. Okay, you can call like submit like on submit function here, and then you can submit the form. Okay, but how do you get a value? Okay, here I will submit it void and I will get the value. But how do you get the value here? Because in reviews form, if you check, we have used the same way ng submit, and then in the control class file, we have used this review form dot the object basically. So here we were getting our value. So in this case, how do you get a value here? Anyone? डॉट नोटेशन या फिर ब्रैकेट्स में डाल के लाइक की The एक्सेस same करके। thing यहाँ पे जो हम लोगों ने किया है यही तो हमारा वैल्यू है. डिस्प्ले क्या कर रहे थे वही तो कर रहे थे राइट. प्रोफाइल फॉर्म यही डिस्प्ले कर रहे थे ना हम लोग. अरे प्रोफाइल फॉर्म कहाँ से यही से तो आया है. Same thing we can use it here. Console.log profile form dot value. This dot profile form dot value basically, and it will display the value. You can enter values here, submit, and you will get the values. See, your entire control is in class itself.
So using this form control, form group, you can get whatever you want here. You don't even have to go to HTML. You don't even have to pass in every value from HTML. You can just get whatever values you want from this profile form group. Understood how to submit it? Yes, sir. Okay, do it. Done. Yes, sir. Okay, great. Chalo, abhi next let's see how do you add a nested form group. Okay, nested form group क्यों चाहिए basically? See, sometimes in your form, like as I told you, forms are complex. Okay, and when you have a complex form, your forms will be huge enough, and you will have a lot of controls. Some controls may be grouped together to create some other control. So यहाँ पे we can have like form group, and inside that form group we can have another form group as well. Okay, so let's consider एक यहाँ पे example लेते हैं कि address. एड्रेस ये ऐसा फील्ड है कि जहाँ पे एड्रेस के अंदर और भी कंट्रोल्स हो सकते हैं. एड्रेस एक ही सेपरेट एंटिटी है, बट एड्रेस हमारे प्रोफाइल में आएगा, और प्रोफाइल में इन एड्रेस वी विल हैव स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, जिप कोड, ये फील्ड हो सकता है. सो वी कैन हैव सच टाइप ऑफ कंट्रोल्स इनसाइड माय एड्रेस और इनसाइड माय फॉर्म. सो इसके लिए you can have a address field here. Okay, but this address is not a control itself, it will be a group of controls. So here we will specify new form group. Okay, and inside this form group we will have controls. Okay, so we will have, let's say, street, which is new form control. Okay, here we will have city, new form control. Then we will have state and zip code. State and zip code. Okay, so we'll have this. This is the group, and inside this group we have controls. Okay, now how do I represent this in HTML? HTML में कैसे represent करेंगे? So for that, we will have to add, let's say, one div. We will add it one div. Okay, बट ये div अगर आपको नहीं चाहिए, div कैसे कि दिख जाएगा वहां पे. अगर आपको div नहीं दिखाना है, तो we can use ng container for that as well. ng container क्या होता है कि दिखता नहीं है सिर्फ. Okay, and in this I can add a group. Okay, यहाँ पे let's say I'll add a field h5 में and say address, और इसके नीचे we can have this controls. ये controls हम लोग add कर सकते हैं, same controls यहाँ पे. This control यहाँ पे पासवर्ड की जगह पे we will have a street. ये street हम लोग यहाँ पे भी add कर सकते हैं फॉर्म कंट्रोल में. The type will be text and this is street. ये हो गया आपका street, street, street. Okay, ये street, अभी ये street एक्चुअली फॉर्म कंट्रोल नेम मैंने यहाँ पे लिखा है, बट एक्चुअली दिस कंटेनर, दिस एंटायर कंटेनर जिसके अंदर हम लोग फॉर्म कंट्रोल्स ऐड करने वाले हैं, तो दिस इज अ ग्रुप ऑफ दिस एंटायर फॉर्म कंट्रोल्स, राइट. सो इसको हम लोग को बोलना पड़ेगा फॉर्म ग्रुप नेम. अभी हम लोग को फिर से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं डालना है. ओके, अब इसको अगर ध्यान में रखना है तो आप इतना ध्यान में रख सकते हो. टॉप मोस्ट में जब जब आएंगे लाइक फॉर्म में,
you leave square brackets, अंदर सब में आपको फॉर्म कंट्रोल नेम फॉर्म ग्रुप नेम यूज करना. ओके, एरे के केस में अलग आएगा तभी बताऊंगा, बट सब जगह पे आपको ऐसे ही रहेगा. लाइक टॉप मोस्ट में यू हैव स्क्वायर ब्रैकेट और अंदर सब फॉर्म कंट्रोल नेम फॉर्म ग्रुप नेम ऐसा है. ओके, इवन यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इसमें तो टॉप मोस्ट में कुछ है ही नहीं. तो जब टॉप मोस्ट में कुछ है ही नहीं, तो जो अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट है तो वहां पे आप डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट में स्पेसिफाई. सेम गोस हियर. यहाँ पे फॉर्म ग्रुप नेम फॉर्म हमारे एंटायर ये फॉर्म के अंदर है, प्रोफाइल फॉर्म के अंदर, इसलिए वी आर राइटिंग फॉर्म ग्रुप नेम एंड वी आर स्पेसिफाइंग एड्रेस. अभी एड्रेस के अंदर वी विल हैव स्ट्रीट, देन हमारा सिटी, स्टेट, जिप कोड. डाल देते हैं सब पे. स्ट्रीट, सिटी, सिटी हो गया. यहाँ पे आ गया आपका स्टेट, यहाँ पे आ गया आपका जिप कोड. जिप कोड, ठीक है. ये होगा हमारा कंट्रोल. लेट्स सी. देखो आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आ रहा है. यू सी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड एड्रेस. एड्रेस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ. यस अरे मी त्याला केलेला कॉल आज. अमोल. सॉरी. Okay, so here you can see street, city, state, zip code is an object of address. Okay, and you can see now if I enter all the values here, यहाँ पे डाल देते हैं street कुछ तो, city, state, zip code. Okay, and if I submit it, you will see the object where first name, last name, password, email, and address is the object with street, city, zip code, and state. Okay, so that's how you can see the reactive forms are already giving you the data in a structured format, because we are defining a group or form control in a structured format. So whatever the structure that you define, you will get the output in that structure itself. Okay, understood everyone how to define a nested form group? Yes, sir. Okay, cool. Great. Write it down. सर इसको कंटेनर लेके ही कर सकते क्या? अगर ग्रुप है ऐसा तो एड्रेस का इंडिविजुअल नहीं दिखा सकते डायरेक्ट? कंटेनर मैंने इसके लिए लिया बिकॉज अगर आप देखोगे यहाँ पे, आप ये जो फॉर्म है इसके अंदर एड्रेस डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है. अगर मैं कंटेनर नहीं लिखता ना, अगर लेट्स से मैं यहाँ पे डिव लिखता, डिव, तो ये पूरा डिव आपको यहाँ पे दिखेगा और डिव के अंदर आएगा. ओके. एंटायर डिव और उसके अंदर आपका एड्रेस आ जाएगा. और आपको वैसे चाहिए तो वैसे लिखो, इट्स अप टू यू. अगर आपको वो एक्स्ट्रा डिव नहीं चाहिए तो यू कैन यूज एनजी कंटेनर. एनजी कंटेनर वो डिव नहीं ऐड करेगा एक्स्ट्रा, डायरेक्टली वही पे प्लेस कर देगा. you can say it's a imaginary field और imaginary tag जो exist नहीं करेगा बट हम लोग यूज कर सकते हैं रैप करने के लिए.
Then सर एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आई डोंट नो अभी तक चल रहा था। अह, ये क्यों है ऐसा? क्या हुआ? एक मिनट सर, ये फर्स्ट नेम अभी लास्ट अभी थोड़ी देर पहले तो चल रहा था लाइक आपका ये है, आपने कहीं पे सबमिट ऑब्जेक्ट प्रिंट किया है क्या? ऑब्जेक्ट तो मैंने यहाँ पे ही प्रिंट किया है बस। कहाँ पे? यहाँ पे। हाँ, प्रोफाइल फॉर्म ये आपका पहले से ही आ रहा था, आपने सिर्फ ध्यान नहीं दिया रहेगा। प्रोफाइल फॉर्म सर्कुलर डिपेंडेंसी प्रिंट करता है, इसलिए वो प्रिंट नहीं होता ऑब्जेक्ट। डॉट वैल्यू लिखो वहां पे। अच्छा ओके। बट प्रीवियस जब हम कर रहे थे, जब वो सिर्फ फर्स्ट नेम के लिए था, दैट टाइम टू इट वाज वर्किंग राइट करेक्टली। हाँ, वो फर्स्ट नेम का सर्कुलर डिपेंडेंसी नहीं ना, वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट वहां पे मिल जाता है। प्रोफाइल फॉर्म में वो सर्कुलर डिपेंडेंसी आ जाता है, इसीलिए वो प्रिंट नहीं करता, इसीलिए वो आपको एरर थ्रो कर रहा है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। हो गया सबका? बाकी लोग है कि नहीं? What about अमोल, रवि, सागर, सोनाली, ऋषिकेश, प्रणति, बालाजी? ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हम लोग ने फॉर्म ग्रुप किया, फॉर्म ग्रुप क्रिएट किया, उसके अंदर नेस्टेड फॉर्म ग्रुप सो क्रिएट किया। हम लोग ने जब सिंपल कंट्रोल बनाया था, वी सॉ कि हाउ टू अपडेट दैट कंट्रोल वैल्यू, ओके, यूजिंग the set value function. But if we have a entire object now we have an entire group of controls. I want to update, let's say, specific parts of this group, like say मुझे first name update करना है and I want to update city. मुझे सिर्फ ये दो पार्ट से अपडेट करने हैं, फर्स्ट नेम एंड सिटी। हाउ डू यू अपडेट इट, अगर आपको अपडेट करना है तो? सेलेक्ट से मैं यहाँ पे एक बटन बना देता हूँ। इंस्टेड ऑफ राइटिंग टाइप सबमिट, आई विल यूज टाइप बटन, बिकॉज बाय डिफॉल्ट टाइप सबमिट ही होता है। तो अगर आप इस पे भी क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म फिर से सबमिट हो जाएगा। ओके, सो डोंट यूज सबमिट, सबमिट बटन एंटायर फॉर्म में एक ही होना चाहिए। सो हियर लेट्स से अपडेट fields, and I will use click function, click and update fields, और ये फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं अपडेट fields। ये हमारा अपडेट फील्ड्स आ गया। अभी यहाँ पे फील्ड्स कैसे अपडेट करेंगे? इफ यू वांट टू सेट द वैल्यू, ओके, तो अगर आप अब ऐसे लिखते दिस डॉट प्रोफाइल फॉर्म डॉट सेट वैल्यू, ओके, सेट वैल्यू तो ऑब्वियसली कर सकते हो, बट द सेट वैल्यू एक्सेप्ट्स एंटायर, लाइक सारा ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है आपका जो एक, it basically adheres to the structure, okay, and it accepts all the values, okay। मतलब अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट नेम ऐसे लिखा एंड देन वैल्यू दिया तो नहीं चलेगा, वो बोलेगा मिसिंग वैल्यूज, ओके, इसमें ये वैल्यूज मिसिंग है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम वगैरह सब मिसिंग है। फिर लास्ट नेम डालोगे फिर बोलेगा ईमेल मिसिंग है। तो सेट वैल्यू क्या करता है, एंटायर फॉर्म को अपडेट मारता है, ओके। एंड तो हम लोग सिर्फ इतना ही फर्स्ट नेम और सिटी अपडेट करना है तो कैसे करें? So for that you can use patch value. Okay, patch value just updates whatever you want to update from that group. Okay, so first name update करना, so I'll write first name here, and then मुझे city update करना ना, city is inside address, so I'll write address colon, and inside that I will say city, let's say, okay, like this. If I do this and do update fields, you will see name update हो गया, city भी update हो गया। Okay, so that's how you can update
parts of your forms by using patch value. Understood? Sorry. समझा सबको? सेट वैल्यू यूज करते हो तो आपको एंटायर ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा स्पेसिफाई करके वैल्यू स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, बट पैच वैल्यू में जस्ट जितना चाहिए उतना स्पेसिफाई करके अपडेट कर सकते हो. ओके, ठीक है. ओके सर. या कर लो ट्राई. हो गया? यस सर. ओके, ठीक है. नाउ और एक देखते हैं सर, यहाँ पे लाइक फॉर्म कंट्रोल वगैरह हम लोगों ने क्रिएट किया, बट फॉर्म ग्रुप भी क्रिएट किया, बट कैसे कि अभी जब कंट्रोल्स थोड़े से ही है तो ठीक है, हम लोग को लिखने के लिए इतना कुछ लगता नहीं, बट जब फॉर्म कंट्रोल्स बहुत बढ़ते जाएंगे तो इट बिकम्स लाइक आपको बार बार फॉर्म ग्रुप लिखना, फॉर्म कंट्रोल लिखना, बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा बेसिकली. सो इंस्टेड ऑफ दैट फॉर्म अपना रिएक्टिव फॉर्म्स क्या करता है, इट प्रोवाइड्स यू वन सर्विस called as form builder service. Now using this form builder service we can create or build your form. Okay, ये फॉर्म बिल्डर सर्विस यूज करके we can build the entire form. हम लोग को ये फॉर्म ग्रुप, फॉर्म कंट्रोल लिखने की जरूरत नहीं है. Okay, how we can create it? We can just write instead of this new form group, we can write this dot fb dot group. Okay, ये ग्रुप क्रिएट कर देगा. सेम यहाँ पे भी ग्रुप है तो ग्रुप क्रिएट कर देगा. Here we don't even have to write this dot fb dot control. सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो और आपका वैल्यू डाल दो. सो दिस इज योर फॉर्म कंट्रोल. ये आपका फॉर्म कंट्रोल बन जाएगा. इवन ये भी आप सारे इसको रिप्लेस कर सकते हो विद स्क्वायर ब्रैकेट एंड आपका क्या बोलते हैं, सिंगल कोट, डबल कोट जो डालना है. ओके, सो अब देखो आपको पूरा फॉर्म ग्रुप, फॉर्म कंट्रोल लिखना, सिर्फ फॉर्म ग्रुप लिखना पड़ेगा, फॉर्म कंट्रोल लिखने की जरूरत नहीं. हाँ, आपको चाहिए तो लिख सकते हो ऐसे दिस डॉट एफ बी डॉट कंट्रोल, तो कंट्रोल क्रिएट कर देगा. सो बोथ द वेज विल वर्क. ओके, बट शॉर्टकट में आप डायरेक्टली लिख सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट लिख के आपका फॉर्म छोटा हो जाएगा, मतलब दिखने में छोटा दिख जाएगा, बट आपको लिखना भी छोटा ही पड़ेगा. Okay, so that's how you can create form entire form by using form builder service.
एंड दिस कैन बी हेल्पफुल इफ यू वांट टू क्रिएट अ डायनामिक फॉर्म्स। आप देख सकते हो हमारा फॉर्म अभी भी जैसे वर्क कर रहा था वैसे ही वर्क कर रहा है। okay. समझा ये फॉर्म बिल्डर सर्विस? अगर आपको बहुत बड़े बड़े फॉर्म्स है ना तो फॉर्म बिल्डर सर्विस से इजी पड़ेगा आपको फॉर्म कंट्रोल्स ग्रुप्स बनाना, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट एंटायर न्यू फॉर्म ग्रुप, न्यू फॉर्म कंट्रोल, ऐसा। समझा? बार रिपीट कर दो ना सर एक बार। सी पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि फॉर्म ग्रुप वगैरह बनाते थे ना, सो मैं पहले का रख ही देता हूँ यहाँ पे, कॉपी कर देता हूँ। पहले हम लोग ऐसे बनाते थे, राइट? तो ये फॉर्म ग्रुप जो है ना आप पूरा कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग फॉर्म बिल्डर। सो फॉर्म बिल्डर क्या करता है, इट हेल्प्स यू टू बिल्ड योर फॉर्म बाय जस्ट टाइपिंग दिस डॉट एफबी डॉट ग्रुप। आपको न्यू फॉर्म ग्रुप लिखने की जरूरत नहीं है। एंड अंदर के कंट्रोल्स के लिए ना यू डोंट इवन हैव टू राइट न्यू फॉर्म कंट्रोल दिस डॉट एफबी डॉट कंट्रोल। आप स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल के उसमें वैल्यू डाल दो, तो जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो फर्स्ट पैरामीटर बिकम्स इट्स डिफॉल्ट वैल्यू, और फिर आपका कंट्रोल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, बिल्डर आपको क्या करता है कि जस्ट हेल्प करता है कि तो कम से कम लाइन में, कम से कम कोड में यू कैन क्रिएट योर फॉर्म एंटायर फॉर्म। ओके, अब ये देखो यहाँ से यहाँ अगर कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हो बहुत बार न्यू फॉर्म कंट्रोल वगैरह लिखना पड़ा, बट इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग यहाँ पे एकदम शॉर्ट में डायरेक्टली कंट्रोल्स क्रिएट कर सकते हैं सभी को। okay. आपका फॉर्म बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये हेल्पफुल रहेगा, आपको दिखने में इजी हो जाएगा, रीडेबिलिटी के लिए भी इजी हो जाएगा। एंड इफ इट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म ग्रुप के अंदर ग्रुप है वगैरह, इट बिकम्स इजी। ओके, ओके सर। डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस कुछ नहीं है इतना, सिर्फ हम लोग को फॉर्म कंट्रोल को रिप्लेस करना है फॉर्म बिल्डर का ग्रुप से, फॉर्म बिल्डर का कंट्रोल से, बस। और अब जब आगे जाके डायनामिक फॉर्म्स वगैरह बनाओगे तो फॉर्म बिल्डर सर्विस से डायरेक्टली फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यस सर। ओके, सर एफबी को डिफाइन करना पड़ेगा कहीं पे फॉर्म किया बिल्डर ना, सर्विस इंजेक्ट किया ना यहाँ पे, को? प्राइवेट एफबी फॉर्म बिल्डर। एक ओके, चलो फिर डन, देन आगे बढ़ते हैं ना। अभी तक हम लोगों ने देखा था फॉर्म ग्रुप, फॉर्म कंट्रोल्स क्रिएट कर रहे थे। सर यस, एक मिनट वो दिखाओ ना जो इंजेक्ट किया था एफबी को। आई कैन राइट इट लाइक सर्विस ही तो है, फॉर्म बिल्डर आप डायरेक्टली लिख सकते ओके सर। हो, ठीक है। हाँ, तो अभी तक हमने फॉर्म ग्रुप, फॉर्म कंट्रोल्स क्रिएट कर रहे थे ना। थोड़ा सा साइड में जाते हैं और देखते हैं कि हाउ डू यू वैलिडेट दिस कंट्रोल्स। ओके, रिव्यू फॉर्म्स में अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे वी आर क्रिएटिंग फॉर्म कंट्रोल्स इन द टेम्पलेट इटसेल्फ,
और वैलिडेशंस भी वहीं पे डालते थे, लाइक रिक्वायर्ड वैलिडेटर जो था वहीं पे डाल रहे थे. Now in this we can add validators in your control itself, because आपका कंट्रोल यहाँ से क्रिएट हो रहा है, क्लास में ही कंट्रोल्स क्रिएट हो रहा है, यहीं पे यू कैन ऐड द validators and then you can use them, those validators here. यूज मतलब क्या है कि डायरेक्टली वैल्यूज वैलिड इनवैलिड वगैरह बता देगा. ओके, सो हाउ डू यू ऐड वैलिडेटर? सो यहाँ पे यू कैन सी फर्स्ट नेम, फर्स्ट एरे का फर्स्ट पैरामीटर जो है दैट इज नथिंग बट इट्स वैल्यू एंड द सेकंड पैरामीटर इज नथिंग बट वैलिडेटर. ओके, सो आपको जो वैलिडेटर यहाँ पे डालना है वो डाल सकते हो. हाउ डू यू स्पेसिफाई वैलिडेटर? ना वैलिडेटर के लिए इन फॉर्म रिएक्टिव फॉर्म्स देयर आर सम इनबिल्ट वैलिडेटर्स. सो यू कैन यूज वैलिडेटर्स dot there are, you can see like there are a lot of validators here, like required tak hai. Okay, so you have a required validator, just specify required here. Okay, so this is like a required field now. Okay, अगर आप मैंने सेव नहीं किया, okay, फाइल को सेव नहीं किया, if I go here and check this, आपको यहाँ पे देखो वही सारे कंट्रोल्स का लाइक ये आ रहे सारे क्लासेस आ रहे, एनजी अनटच्ड, एनजी प्रिस्टाइन, एनजी वैलिड, जो हम लोग लास्ट टाइम देखे थे. एनजी अनटच्ड में मैंने टच नहीं किया, एंड व्हेन आई टच इट और बाहर आएंगे तो एनजी टच्ड हो जाएगा. एनजी प्रिस्टाइन मींस क्या कि मैंने टच करके बाहर तो आया, बट इट इज प्रिस्टाइन मींस व्हाट, आई हैवंट चेंज्ड द वैल्यू. इफ यू चेंज द वैल्यू देन प्रिस्टाइन बिकम्स डर्टी. एंड वैलिड कब होगा? जब वैल्यू उसमें वैलिड है. Now you can see the value is still valid even though I have not written anything, because there is no required validator on this. Okay, even your form is also valid, you can see ng valid. Okay, but what if you want to make this some required validator, add some validator into this, you can just add a validator here. Your control will become validator. You can see invalid, यहाँ पे देख सकते हैं एनजी इनवैलिड है, आप यहाँ पे डाल दो, आपका एनजी वैलिड हो जाएगा, निकाल दो एनजी इनवैलिड हो जाएगा. इवन आपका फॉर्म भी वैसे ही वर्क करता है, एनजी इनवैलिड, एनजी वैलिड. ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन ऐड वैलिडेटर. अब ये तो एक ही वैलिडेटर है, आपको ऐसे बहुत सारे वैलिडेटर्स ऐड कर सकते हो. जैसे कि फर्स्ट नेम लेट्स से कि मुझे रिक्वायर्ड है, लास्ट नेम रिक्वायर्ड नहीं है तो मैंने निकाल दिया, ईमेल रिक्वायर्ड है तो डाल दिया, पासवर्ड भी रिक्वायर्ड है वो भी डाल दिया, बाकी एड्रेस वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है तो आई जस्ट कीप इट एज इट इज. बट अगर सपोज आपको फर्स्ट नेम में सपोज मिनिमम कैरेक्टर्स आपको 3 डालने, ओके, so in that case you can add one, you can wrap this validators inside a square bracket. You can provide array of validators और comma डाल के you can add validators dot mean. अभी वैसे को मीन है और मीन लेंथ दो है. मीन मतलब मिनिमम नंबर होता है कि आपका नंबर अगर है तो मिनिमम नंबर कितना, मीन लेंथ मतलब स्ट्रिंग का लेंथ. ओके, मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग का लेंथ कितना होगा. सो यू वांट मिनिमम लेंथ बिकॉज लेट्स से कि 3 कैरेक्टर्स ही चाहिए मिनिमम, तो आपने वो स्पेसिफाई कर दिया. ओके, सिमिलरली अगर आपको ईमेल पे भी ऐड करना है, सो आई कैन ऐड इट ऑन ईमेल validators dot email. तो आपका ईमेल वैलिडेटर भी ऐड हो जाएगा. एंड नाउ इफ यू कम बैक टू योर फॉर्म यू विल सी आपका एंटायर फॉर्म इज इनवैलिड नाउ, बिकॉज आप यहाँ पे देख लो इनवैलिड है. जैसे जैसे वैलिड ऐड करते जाऊंगा फॉर्म इज स्टिल इनवैलिड बिकॉज आपका ईमेल में अभी भी वैल्यू नहीं है. ये सॉरी ये लास्ट नेम है, ईमेल में अभी तक आपका वैल्यू नहीं है, सो इट्स इनवैलिड. सो लेट्स से मैं लास्ट नेम नहीं डालता, ईमेल डालता हूँ. ओके, योर ईमेल हैज बिकम वैलिड एंड फिर बाद में और नहीं तो ये फिर से ना, हाँ, ईमेल अगर आपका वैलिड रहेगा तो वैलिड आ जाएगा. आप यहाँ पे देख सकते हैं एनजी वैलिड है, मैं भी ईमेल को इनवैलिड कर देता हूँ. देखो डॉट डाल दिया, आपका ईमेल बिकम्स इनवैलिड. ओके, एंड इफ यू ऐड इट विल बिकम वैलिड. That's how you can add valid or invalid validators. Okay, it's easy. आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, just add your validators on your control. Those will be automatically added here. Now अगर इसके बेसिस पे मुझे styling दिखाना है तो I can just copy this entire style from video component.ts to your profile component.ts. यहाँ पे add कर दो, सेम स्टाइलिंग यहाँ पे भी चल जाएगा. सेव करो, आपको यहाँ पे देखो मैं ऐड करता तो आपको ग्रीन आ गया, निकाल दो रेड आ गया. okay, so that's how you can add styling as well. So just copy paste करना है, रिव्यू फॉर्म से जो स्टाइलिंग लिखा था वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, आपका स्टाइलिंग वही लग जाएगा. अंडरस्टूड हाउ टू ऐड वैलिडेटर. समझे वैलिडेटर्स कैसे ऐड करना है?
सर ओके, मिन लेंथ का भी है, आप देखो मिनिमम मैंने 1 लेंथ डाला, 2, 3, जैसे 3 लेंथ हो गया आपका ग्रीन हो गया, 3 से कम जाओगे आपका रेड हो जाएगा. So that is also, that validator is also working. Try this out. सर ये सीएसएस कैसे कॉपी किया आपने? फिर CSS कॉपी मतलब रिव्यू फॉर्म्स में है ना, यहाँ ओ से ओ कॉपी ओ किया है. सॉरी, देखा नहीं, सॉरी सर. हाँ, जस्ट अ मिनट. सर प्रीवियसली हमने ना फॉर्म कंट्रोल यूज किया था ना, वहाँ पे भी सेम ही रहेगा ना प्रोसीजर वैलिडेटर के लिए? हाँ, क्या बोल रहे थे, कोई तो बोल रहा था कुछ. प्रीवियसली हम लोग ने ना फॉर्म कंट्रोल यूज किया था ना, वहाँ हाँ, पे भी सेम प्रोसीजर रहेगा ना वैलिडेटर के लिए? कहाँ पे, ये वाला हाँ, इधर. हाँ वहाँ पे भी ना मतलब? बस कॉमा डाल के यू कैन ऐड वैलिडेटर्स डॉट. ओके ओके, सेम, सिमिलरली सेम, ओके. सेम एरे रहेगा तो कॉमा डाल के एरे में डाल सकते हो. इसी से आपको फॉर्म का वैलिडिटी भी पता चलेगा. तो जैसे हम लोग देखते हैं ना कि फॉर्म का बटन हम लोग को डिसेबल करना है, सबमिट बटन, और फिर फॉर्म अगर वैलिड है तो ही सबमिट करना है. अभी अगर देखोगे तो फॉर्म भले ही इनवैलिड हो फिर भी वो सबमिट होता है. ठीक है, तो ये चीज हो रहा है. तो अगर आपको ये प्रिवेंट करना है तो आपको फॉर्म का वैलिडिटी चेक करना पड़ेगा. सो वो कैसे कर सकते हैं, आपको जो प्रोफाइल फॉर्म है यहाँ पे, ये प्रोफाइल फॉर्म यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे HTML में. यहाँ पे यू कैन राइट प्रोफाइल फॉर्म डॉट वैलिड, वैलिड है तो ही हम लोग सबमिट करेंगे. ठीक है, तो हमको एंटायर प्रोफाइल फॉर्म मिलता है. यहाँ पे हम लोग को NG फॉर्म वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज योर एंटायर प्रोफाइल फॉर्म इज नथिंग बट योर फॉर्म कंट्रोल फॉर्म ग्रुप है. ओके, वो पूरा फॉर्म ही है. तो इसी से हम लोग को पता चल रहा है, तो हम लोग को NG फॉर्म वगैरह लेने की जरूरत भी नहीं. इवन आपका सबमिट बटन को भी डिसेबल करना है तो भी कर सकते हो यूजिंग डिसेबल्ड. यहाँ पे प्रोफाइल फॉर्म डॉट इन वैलिड डाल दो. यहाँ पे आपका सबमिट बटन डिसेबल हो गया, देखो डिसेबल हो गया. जैसे वैल्यू ऐड करते जाऊंगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड हो गया सारे, और कुछ बचा है क्या, हाँ, पासवर्ड भी रिक्वायर्ड था तो सबमिट कर दिया तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा. ठीक है, रिक्वायर्ड फील्ड के साथ. तो अब ये ऐड कर सकते हैं आपके फॉर्म में अगर आपको फॉर्म का ही डालना है तो. ठीक है, समझा सब लोग को, आगे बढ़े. यस सर. अभी अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल्स के हिसाब से मैंने कलर कोडिंग वगैरह कर दिया, स्टाइलिंग भी चेंज कर दी.
और if अगर मुझे यहाँ पे अलर्ट बॉक्स दिखाना है वो, ठीक है, जैसे हम लोग रिव्यू फॉर्म में अलर्ट बॉक्स दिखाते थे, रिव्यू फॉर्म्स में ये अलर्ट बॉक्स दिखाता, राइट, इफ योर फॉर्म इज डर्टी और इनवैलिड तो हम लोग नेम इज रिक्वायर्ड बोलते थे। सेम चीज अगर मुझे यहाँ पे करना है, नेम इज रिक्वायर्ड और ऐसे कुछ तो लिखना है, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड ऐसा कुछ तो, या फिर फर्स्ट नेम वगैरह कुछ डालते हो, उसमें कुछ रिक्वायर्ड वगैरह फिर लिखना है, तो वो कैसे ऐड करें? बिकॉज यहाँ पे ऑथर अगर नेम लिखूंगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसा कुछ लिखूंगा तो वो मिलेगा नहीं, बिकॉज फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये एक्चुअली वेरिएबल्स होने चाहिए। इन केस ऑफ रिव्यू फॉर्म ये जो हमारा ऑथर था, ये ऑथर हम लोगों ने एक्चुअली टेम्पलेट वेरिएबल लिया था एनजी मॉडल से, एनजी मॉडल हमारे इनपुट पे था इसीलिए कर पाए थे, बट यहाँ पे हमारा इनपुट पे एनजी मॉडल है नहीं तो हम लोग कैसे करें? ठीक है, सो फर्स्ट नेम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू क्रिएट अ गेटर हियर। Okay, so create a getter first name. Okay, let's say first name control. I'll say यहाँ पे the return type will be there because हम लोग को control मिलने वाला है, so I'll say form control here. Okay, और यहाँ पे हम लोग को रिटर्न करना पड़ेगा this dot profile form dot get. अभी get में you can specify first name as form control. ये as क्यों लिखा मैंने, इज लाइक टाइप कास्टिंग, आई एम टाइप कास्टिंग इट टू फॉर्म कंट्रोल, बिकॉज गेट क्या करता है, गेट गिव्स यू द रिटर्न टाइप एज एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल, एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल इज अ पैरेंट ऑफ ऑल ऑफ दिस, फॉर्म कंट्रोल फॉर्म ग्रुप सबका पैरेंट है, तो उसको अगर कन्वर्ट करना है फॉर्म कंट्रोल में, सो यू हैव टू टाइप कास्ट इट यूजिंग एज फॉर्म कंट्रोल। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम कंट्रोल का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, यू कैन यूज दिस फर्स्ट नेम कंट्रोल ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे यूज कर सकते हो, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड ऐसे दिखाने के लिए। So if you run your code and if you write like this, first name is required, but actually देखा जाए तो यहाँ पे first name is required का एरर नहीं मैंने डाला है, बट यहाँ पे फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड क्यों आया, बिकॉज मैंने वैल्यूज तो डाला है, भले ही टू कैरेक्टर्स है, बट फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड दे रहा है। एक्चुअली देयर आर टू वैलिडेटर्स ऑन दिस फर्स्ट नेम, और आप चेक करोगे हमारे पास दो वैलिडेटर्स है, एक है रिक्वायर्ड का और दूसरा मेन लेंथ का। दूसरा जो एरर आ रहा है, जो इनवैलिड हो रहा है, वो इनवैलिड हो रहा है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन योर स्ट्रिंग। तो यहाँ पे 2 ही कैरेक्टर्स है, इसीलिए वो आपको ये अलर्ट दिखा रहा है, बट जो मैसेज है वो डिफरेंट है, वो मैसेज प्रॉपर नहीं है, राइट। सो मैसेज हम लोग प्रॉपर कैसे दिखाएंगे, बेस्ड ऑन व्हाट एरर यू आर गेटिंग। सो उसके लिए व्हेन यू हैव दिस, सॉरी नॉट दिस, व्हेन यू हैव दिस फर्स्ट नेम कंट्रोल, अगर मैं इसको फर्स्ट नेम कंट्रोल को प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, लेट्स से दिस फर्स्ट नेम कंट्रोल डॉट एरर्स, ओके, इसमें एक एरर्स फील्ड होता है, अगर एरर्स फील्ड को मैं प्रिंट करता हूँ, यू विल सी द एरर रिक्वायर्ड ट्रू, अभी ये रिक्वायर्ड ट्रू है, दैट मीन्स मेरा एरर है रिक्वायर्ड ट्रू। अगर मैं एंट्री करता हूँ, यू विल सी मीन लेंथ आ जाएगा। सो एट अ टाइम एक ही टाइप का एरर दिखेगा आपको, दो टाइप के एरर नहीं दिखेंगे, ओके, बिकॉज वो जो वैलिडेटर चलते हैं वो सीक्वेंस में चलते हैं, जो ऑर्डर में आपने लिखे वो ऑर्डर में चलेंगे, पहले रिक्वायर्ड वाला वैलिडेटर चलेगा, अगर ये पास हो जाता है तो फिर वो आगे वाला वैलिडेशन चेक करेगा, अगर यहीं पे फेल हो गया तो आगे का वैलिडेशन चेक ही नहीं करता, इसलिए आपको फर्स्ट टाइम पे एक ही एरर दिखेगा। दैट्स द रीजन यू आर गेटिंग रिक्वायर्ड ट्रू फर्स्ट, ओके, एंड देन आपको दिख रहा है मीन लेंथ 3 वाला। यहाँ पे मीन लेंथ 3 वाला अगर आप ये एरर्स में से चेक कर सकते हो, रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड वाला है तो आई कैन से फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, अगर मुझे मीन लेंथ वाला है तो आई कैन से मिनिमम 3 कैरेक्टर्स, लाइक फर्स्ट नेम शुड बी मिनिमम 3 कैरेक्टर्स, ओके, मिनिमम 3 कैरेक्टर्स। सो वो ऐसा एरर कुछ हम लोग दिखा सकते हैं। सो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आई विल एड ng कंटेनर अगेन, और यहाँ पे ng if लिखता हूँ, ng if में I'll write first name control dot errors डॉट, अगर मैं लिखता हूँ, ओके, तो यहाँ पे आपको वो मिलेगा नहीं, रिक्वायर्ड ऐसे कुछ लिखूंगा, ओके, तो आपको एरर देगा, बिकॉज ये एक्चुअली ऐसे एक्सेस नहीं करते, इसको एक्सेस करना है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल कोट में ऐसे एक्सेस करना पड़ेगा, बट यहाँ पे भी आपको एरर देगा बिकॉज एरर्स कैन बी नल, सो आपको क्वेश्चन मार्क डालना पड़ेगा, बिकॉज एरर्स ऑब्जेक्ट अगर नल है तो नल पे आप कोई फील्ड एक्सेस नहीं कर सकते, ओके।
सबको क्वेश्चन मार्क लिखोगे तो वो नल रहेगा तो आगे एक्सेस नहीं करने जाएगा। ओके, दिस इज अ नल कोलेशंस ऑपरेटर, जिससे आप नल अगर रहेगा तो आगे चेक नहीं करता, नल है सॉरी नल है तो आगे चेक नहीं करता, नल नहीं है तो आगे चेक करता। ओके, सो रिक्वायर्ड आपको आ जाएगा, अगर रिक्वायर्ड है तो विल से फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, तो हम लोग यहाँ पे I'll add this one, first name is required। अगर ये नहीं है तो we'll add one more empty container here and इसमें बोल देंगे first name dot errors dot min length। when min length है तो हम लोग क्या दिखाएंगे, अगर आपको ये रिक्वायर्ड लेंथ का भी वैल्यू चाहिए, अभी देख सकते हो रिक्वायर्ड लेंथ 3, क्योंकि मैंने 3 बोला है ना, अगर एक्चुअल लेंथ 1, मैं अगर 2 डालता हूँ तो एक्चुअल लेंथ 2 हो जाएगा, रिक्वायर्ड लेंथ 3 रहेगा, बिकॉज ये रिक्वायर्ड है उतना लेंथ। तो अगर आपको ये भी डायनामिकली लेना है तो भी ले सकते हो, आपको क्या लेना पड़ेगा, ये पहले ले लो कॉपी, देन फर्स्ट नेम शुड बी मिनिमम कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए, सो आई विल राइट दिस कैरेक्टर्स। और यहाँ पे आई कैन राइट फील्ड नेम डॉट एरर्स डॉट मीन लेंथ, और उसके अंदर वी कैन हैव क्या था वो, रिक्वायर्ड लेंथ। ओके, जैसे आप रिक्वायर्ड लेंथ डाल सकते हो, तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश मारोगे आपको रिक्वायर्ड ट्रू आ जाएगा। जैसे मैं डालता देखो फर्स्ट नेम शुड बी मिनिमम 3 कैरेक्टर। ओके, 2 कैरेक्टर्स वहां से लेगा आपका, बाकी अगर वैल्यू प्रॉपर है तो नल आ जाएगा, वैल्यू अगर इनवैलिड है तो आपको वो एरर दिखेगा मिनिमम 3 कैरेक्टर्स, अगर मैं निकाल ही देता हूँ तो आपको आएगा फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड। तो देखो डायनामिकली हमारा एरर कैसे प्रॉपरली दिख रहा है, जो एरर है उस एरर के हिसाब से हम लोग यहाँ पे एरर दिखा रहे हैं। ओके, बट फॉर दिस वी विल नीड दिस गेटर कंट्रोल, हम लोग को चाहिए, और ये कंट्रोल हम लोग को मिल गया तो वी कैन शो ऑल द वैल्यूज हियर। अंडरस्टूड कैसे दिखाना है वैलिडेशन एरर्स डायनामिकली भी? यस सर, ट्राई करते। ठीक है, करो ट्राई, आप ये ट्राई करो, और ईमेल के लिए खुद से ट्राई करके देखो, इसके लिए तो मैंने बता दिया, ईमेल के लिए खुद से ट्राई करके देख लेना। ईमेल पे भी 2 वैलिडेटर्स है ना।
हो गया? Is it done? हो गया सर, ईमेल का नहीं किया बट ये वाला हो गया। ठीक है, ईमेल का भी ट्राई कर लेना, जैसे टाइम लगता है। बाकी सबका भी हो गया? ओके, हाँ सर। गुड, ठीक है। सो में हम लोगों ने फॉर्म कंट्रोल देखा, फॉर्म ग्रुप देखा। ओके, नाउ लेट्स सी फॉर्म एरे। ग्रेट, तो फॉर्म एरे देखते हैं। फॉर्म एरे कभी यूजफुल होगा? सो लेट्स से इफ यू हैव अ सेम कंट्रोल और सेम कंट्रोल आपको मल्टीपल टाइम्स यूज करना है। ओके, सो इन दैट केस यू कैन हैव फॉर्म एरे। ओके, जैसे कि लेट्स से आपके पास एक आप चेकआउट कर रहे, चेकआउट करते वक्त आपके पास दो एड्रेस पूछता है, शिपिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस। अभी दोनों में भी आपको सेम वैल्यूज डालने होते हैं। आपका स्ट्रीट, सिटी, जिप कोड वगैरह सब सेम फील्ड्स होते हैं। शिपिंग एड्रेस में भी सेम और बिलिंग एड्रेस में भी सेम। फिर आपको चेक बॉक्स वगैरह देके वो बोलते हैं कि सेम फील्ड्स होंगे। सो दिस इज लाइक अ एरे ऑफ फॉर्म ग्रुप, कि आपका एड्रेस पूरा एज एरे यूज करना है, सेम एड्रेस आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आपके पास से आपका पास एक सिंपल कंट्रोल है, मोबाइल नंबर, आपको मल्टीपल मोबाइल नंबर ऐड करने हैं, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, तो आपका मोबाइल नंबर ही है बट इट विल हैव टू कंट्रोल्स, लाइक मल्टीपल कंट्रोल्स भी हो सकते हैं अल्टरनेट मोबाइल्स वगैरह ऐड करने के लिए। ओके, सो ऐसे आप बेसिकली फॉर्म कंट्रोल, जब आपको मल्टीपल चाहिए रहते, सेम टाइप का कंट्रोल या सेम टाइप का ग्रुप अगर आपको मल्टीपल टाइम्स चाहिए, देन यू कैन यूज फॉर्म एरेज फॉर दैट। ओके, सो हाउ डू यू क्रिएट अ फॉर्म एरे? सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर के लिए कर लेते हैं। चलो, तो विल यूज मोबाइल नंबर्स हियर, कोलन, okay, and this will be form array. So I'll use this dot fb dot array. Okay, array specify करेंगे। Now since it's an array, तो हम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। Okay, ग्रुप के लिए हम लोग कर्ली ब्रेस डालते हैं बिकॉज की वैल्यू पर रहता है, और इट्स एन एरे ऑफ सेम कंट्रोल्स, तो हमारा ये एरे ऑफ कंट्रोल्स होगा। ओके, सो वी कैन राइट एरे लाइक दिस, ऐसे भी लिख सकते हैं बिकॉज दिस इज अ कंट्रोल नाउ। और एल्स अगर आपको एकदम सिंप्लीफाई करना है तो दिस डॉट एफबी डॉट कंट्रोल भी लिख दो, दैट इज ऑल्सो फाइन। ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, तो थोड़ा और सिंप्लीफाइड हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं तो एरे के अंदर एरे बोलोगे तो क्या है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, क्या है? तो इट्स अ कंट्रोल बेसिकली। ओके, बट इट्स एब्सोल्युटली फाइन इफ यू राइट लाइक दिस। अगर आप ऐसे भी लिख दोगे, लाइक दिस, ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा। okay, but अगर simplicity के लिए तो you will write this dot fp dot control. Okay, that's how you can basically create an array. Okay, but how do you use it? वहां पे हमारे यूज कैसे करें, हमारे HTML में कैसे यूज करेंगे? मोबाइल नंबर्स का क्या है, हमारे पास एरे है। सो लेट्स डू द सेम। अभी ये भी एरे है तो मल्टीपल कंट्रोल्स है, सो आई यूज ng कंटेनर फॉर दिस। आपको चाहिए तो div भी लिख सकते हो। ओके, दैट्स फाइन। div लिखना तो चलो div भी लिख देते हैं, एक के लिए कंटेनर लिखा है ऑलरेडी, सो एक के लिए div लिख देते हैं। यहाँ पे नाउ इट्स अ फॉर्म एरे, सो राइट फॉर्म एरे नेम equals to, it will be mobile numbers. Okay, मोबाइल नंबर्स होगा। नाउ अभी देखो, अभी आपको क्या करना है कि इसमें जस्ट अ मिनट, सॉरी एक काम आ गया था। हाँ, सो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को फॉर्म एरे में हम लोग को मल्टीपल कंट्रोल्स दिखाने, राइट? बट हम लोग जब फॉर्म ग्रुप यूज करते थे तो हमारा एड्रेस हमारा फील्ड रहता, और एड्रेस के अंदर हम लोग के पास स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, जिप कोड ये फील्ड्स रहते थे। हम लोग का एक ऑब्जेक्ट रहता था, राइट? दिस इज ऑब्जेक्ट विच हैज अ की, एंड वैल्यू जो होता है वो कंट्रोल होता है। बट यहाँ पे इन केस ऑफ एरे वी डोंट हैव अ की, हम लोग को हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू है,
बट इसका की जो है दैट इज नथिंग बट इंडेक्स 0 1 2 3, बिकॉज एरे है ना, तो यहाँ पे इसका की होगा इंडेक्स. तो हाउ डू यू एक्सेस दिस इंडेक्स और हाउ डू यू क्रिएट, लाइक एरे में बहुत सारे फील्ड्स हो सकते हैं. अभी तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा तो डायनामिकली ऐड भी करते रहूंगा. वेरएस इन ग्रुप में रेयरली ऐड कर सकते हैं हम लोग, ऐड कर सकते हैं ऑब्वियसली, बट रेयरली वी कैन ऐड इट. बट एरे में ऐसा होगा कि यू कैन ऐड इट मल्टीपल टाइम्स. तो हम लोग ऐसे एज्यूम नहीं कर सकते कि हमारा फॉर्म एरे इतना ही लेंथ का है. इट कैन बी लाइक बहुत सारा लेंथ का हो सकता है. ओके, सो उस केस में हम लोग कैसे यहाँ पे करेंगे. ओके, सो जैसे एक चीज है कि हम लोग को लूप घुमाना पड़ेगा. ओके, तो लूप घुमाने के लिए लेट्स यूज द लूप. तो यहाँ पे लूप ही डाल देते हैं. पे हम लोगों ने H5 में एड्रेस लिखा था ना, यहाँ पे H5 में आई राइट मोबाइल नंबर्स. ओके, और हम लोग को ये सपोज ऐसे ही लिखना है ना, तो यही डिव डाल देते हैं. यहाँ पे लिखते हैं जिप कोड की जगह पे मोबाइल नंबर ऐसे लिख देंगे. so this is like मोबाइल नंबर. ठीक, लेबल एक्चुअली लेबल की जरूरत नहीं है बट फिर भी डाल देंगे. ठीक है, एंड यहाँ पे आप जो कंट्रोल नेम है, ओके, ये कंट्रोल नेम एक्चुअली अगर हमारा ग्रुप होता तो ग्रुप के अंदर हम लोग स्पेसिफाई करते हैं. जैसे एड्रेस के अंदर स्ट्रीट है, सिटी है, स्टेट है, जिप कोड है, वैसे मोबाइल नंबर्स के अंदर वी डोंट हैव अ कंट्रोल नेम. ये हमारा इंडेक्स होगा 0 1 2 3. बट हम लोग 0 1 2 3 कैसे डालेंगे, बिकॉज हम लोग को वैसे लूप घुमाना पड़ेगा, राइट. तो उसको उस पे लूप घुमाने के लिए हम लोग लूप कहाँ पे, ये एंटायर डिव हम लोग को रेप्लिकेट करना है, राइट, लेबल इनपुट के साथ. अगर आपको लेबल नहीं चाहिए यू कैन सिंपली रिमूव इट. ओके, लेबल अगर नहीं चाहिए, बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर मोबाइल नंबर लिख के रखा है. अगर चाहिए तो उसको भी रिपीट करना है तो रिपीट कर सकते हैं. ठीक, यहाँ पे यू कैन राइट ng फॉर लूप. ng फॉर में यू कैन स्पेसिफाई आइटम. अभी आइटम बेसिकली क्या है, अभी ये लूप घूमेगा किसके ऊपर, ये लूप किसके ऊपर घूमेगा, बिकॉज ये जो है ये मोबाइल नंबर इट्स एन फॉर्म एरे. एक्चुअली लिखा है फॉर्म एरे बट इट्स नॉट एक्चुअल एरे. ये एक्चुअल एरे नहीं है, इट्स अ फॉर्म एरे बट इट्स नॉट एक्चुअल एरे, राइट. सो इसको हम लोग को कंट्रोल्स का एरे कैसे मिलेगा. सो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट अ गेटर हियर फॉर मोबाइल नंबर्स. दिस विल रिटर्न मी फॉर्म एरे. जहाँ पे I'll return this dot profile form dot get और इसमें लिखते हैं मोबाइल नंबर्स which is as form array. ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे फॉर्म एरे मिल गया. नाउ इसमें मोबाइल नंबर्स में फॉर्म एरे जो है इसमें से वी कैन गेट कंट्रोल्स. ओके, सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लिस्ट वी कैन राइट फॉर क्या था हमारा मोबाइल नंबर्स डॉट कंट्रोल्स. ओके, ये कंट्रोल्स जो है ना, ये अगर होवर करोगे सो इट्स एन एरे ऑफ कंट्रोल्स, लाइक ये आपका एरे है पूरा. ओके, सो इसके ऊपर आप लूप घुमा के आप यहाँ पे वैल्यूज ले सकते हो. ओके, यहाँ पे आप वैल्यू कैसे लोगे, ये जो आइटम है दिस आइटम इज नथिंग बट एक लेट्स से मोबाइल नंबर है, एक मोबाइल नंबर है. ठीक, मोबाइल नंबर्स में से एक मोबाइल नंबर हमने आइटम कंसीडर किया. ओके, बट ये जो है ये पूरा कंट्रोल है और ये कंट्रोल में यहाँ पे नहीं डाल सकता बिकॉज कंट्रोल में एक्चुअली कंट्रोल नहीं चाहिए, यहाँ पे की चाहिए. तो की कैसे निकालेंगे, इंडेक्स चाहिए ना. तो इंडेक्स के लिए वी विल यूज कोलन लेट आई इक्वल्स टू इंडेक्स. मैंने आपको ये लास्ट टाइम भी बताया था फॉर लूप में वी कैन यूज इंडेक्स एज अ वेरिएबल. ये इंडेक्स वेरिएबल हम लोग को एंगुलर प्रोवाइड करता है व्हेन यू आर यूजिंग फॉर लूप. और वो इंडेक्स वेरिएबल वी कैन यूज इट टू असाइन इट टू अ वेरिएबल और वो वेरिएबल हम लोग यूज कर सकते हैं. ओके, विद दिस आई वेरिएबल आई कैन यूज इट हियर. बट यहाँ पे अगर मैं आई लिखता हूँ ओके तो दिस विल नॉट प्रिंट 0 1 2 3. दिस इज आई बिकॉज ये हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रैप नहीं किया है. ओके, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रैप नहीं किया तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा और ये आई ही रहेगा, आई का वैल्यू नहीं होगा. तो विल रैप इट इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट. नाउ दिस आई बिकम्स अ वेरिएबल. आप देख सकते हो इस पे और करूंगा तो वेरिएबल नंबर आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा. ओके, एंड फिर अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो आई भी डिस्प्ले कर सकते हो अगर आपको मोबाइल नंबर किसके लिए कौन से इंडेक्स के लिए दिखाना है उसके लिए. तो यहाँ पे यू कैन राइट आई. नाउ यू कैन रिफ्रेश एंड यू विल सी मोबाइल नंबर 0 लिख के आ रहा है. ओके, सो आई विल ऐड द वैल्यूज. मोबाइल नंबर डाल देते हैं यहाँ पे एंड सबमिट.
अभी सबमिट करोगे तो आपको मोबाइल नंबर का देखो एरे आ जाएगा यहाँ पे, बट यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा कंट्रोल्स कैसे ऐड करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल्स अगर मुझे ऐड करना है एक्स्ट्रा, जैसे कि बटन के क्लिक पे मुझे कंट्रोल्स ऐड करना है, तो वो कैसे ऐड करूंगा। सो उसके लिए लेट्स क्रिएट अ बटन, बटन .btn हाइफन प्राइमरी, फिर इसके अंदर I'll write let's say add mobile number, let's say add mobile, और इसके अंदर we'll write click को लिखेंगे add mobile, और ये फंक्शन हम लोग बना लेते हैं हमारे प्रोफाइल कंपोनेंट टीएस में, यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे बना, so it is not returning anything void। अभी यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड कैसे करेंगे, वी हैव अ एरे हियर, so we'll write list dot mobile numbers dot, ओके आपका आएगा यहाँ पे पुश, पुश यहाँ पे again is push, और पुश में you can write this dot fb dot control, आपका कंट्रोल इसके अंदर पुश कर दो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कंट्रोल डाला था, सेम कंट्रोल यहाँ पे हम लोगों ने पुश किया है एरे में, पुश कर दो और यहाँ पे आ जाओ, एंड इफ यू सी यहाँ पे मैं जैसे ऐड मोबाइल करूंगा यू विल सी द नेक्स्ट कंट्रोल इज एडेड, यू कैन ऐड वन मोर टाइम द कंट्रोल विल बी एडेड, यू कैन ऐड द वैल्यूज, यहाँ पे भी ऐड कर दो, यहाँ पे भी सॉरी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे नंबर नहीं स्ट्रिंग भी डाल सकता बिकॉज वो टाइप मेरा स्ट्रिंग है, इसके लिए आप वैल्यूज सबमिट करो, यहाँ पे सबमिट करोगे यू विल सी मोबाइल नंबर्स इज एन एरे ऑफ ऑल द वैल्यूज, के सारे वैल्यूज यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ओके सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड। अभी ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला ग्रीन मार्क, ये इसके लिए दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे आपका ये पूरा फॉर्म एरे है ना, दिस एंटायर डिव इसको आ रहा है बिकॉज ये भी ng वैलिडिटी टच्ड है, ओके तो यहाँ पे वी कैन से अगर जिसके पास फॉर्म एरे नेम है वो छोड़ के भी चाहिए तो वी कैन यूज सेम टेक्निक हियर, जैसे हम लोग नॉट ऑफ फॉर्म बोल रहे हैं वैसे नॉट ऑफ वो एट्रीब्यूट है तो फॉर्म एरे नेम लिखना पड़ेगा बिकॉज इट्स एट्रीब्यूट, ओके तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा, बिकॉज टैग हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं नॉट ऑफ फॉर्म, बट जिस एट्रीब्यूट के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा ना। अगर आप ऐड करते हैं यहाँ पे एंड इफ आई ऐड नंबर, देखो सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा, ओके तो ग्रीन मार्क यहाँ पे नहीं आएगा। So that's how you can add styling, and basically that's how you can push your control and add dynamic controls to it। समझा सब लोग को? आई नो ये फॉर्म एरे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट यहाँ पे आपको क्या है कि मेन चीज हम लोग को ध्यान में देना है कि फॉर्म एरे जब बनाते हैं तो ये एरे होता है और एरे में की नहीं होता, की आपका इंडेक्स होता है एक्चुअली, तो ग्रुप में तो दिखाना इजी हो जाता है बिकॉज फॉर्म कंट्रोल नेम में की हम लोग डायरेक्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो वहां पे आपका वो कंट्रोल दिखेगा, बट हाउ डू यू स्पेसिफाई दिस इन एरे, तो एरे के लिए यू कैन यूज द की एज इंडेक्स, तो इंडेक्स हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं, तो इंडेक्स ऐड करने के लिए आप लोग को लूप घुमाना पड़ेगा, फिर लूप घुमा के यू कैन गेट द इंडेक्स, और वो इंडेक्स यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल नेम में ऐड कर सकते हैं। एंड व्हाई वी हैव रिटन इट इन स्क्वायर ब्रैकेट, बिकॉज जो जो इंडेक्स है वो वेरिएबल है, यहाँ आई जो है वेरिएबल है ना, तो आई का वैल्यू प्रिंट करना है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया, अदरवाइज अगर हम लोग विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे तो यहाँ पे दिस विल बी आई विल बी अ स्ट्रिंग, और वो आई वैसे के वैसे दिखेगा, 0 1 2 3 नहीं दिखाएगा, ओके तो इसके लिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट में रैप किया। एंड इसी कंट्रोल्स में अगर आपको और कंट्रोल्स ऐड करने सो यू कैन यूज द कंट्रोल नेम डॉट पुश और उसमें कंट्रोल ऐड कर सकते हैं, ओके अंडरस्टूड हाउ डू वी क्रिएट दिस? यस सर। इसमें हम सर उसमें हम लोग इनपुट टाइप टेल या नंबर नहीं डिफाइन कर सकते क्या? हाँ कर सकते हैं ना, वही तो मैं बोला कि मैं एक्चुअली भूल गया यहाँ पे ऐड करने के लिए, ओके मैं टेक्स्ट डाला था और यहाँ पे। लिमिटेशंस कैसे देंगे? टेन मीन वही है क्या एट्रीब्यूट जो HTML के है, मीन लेंथ? मीन लेंथ वगैरह देना है तो हाँ यहाँ पे HTML का भी डाल सकते हो, बट HTML का चल जाएगा, ट्रिगर होगा, एंगुलर का ट्रिगर नहीं होगा। एंगुलर का ट्रिगर करने के लिए आप वो यूज कर सकते हो, आपका यहाँ पे कॉमा डाल के यू कैन ऐड वैलिडेटर्स डॉट मीन वैलिडेटर, ये मीन वैलिडेटर में नंबर स्पेसिफाई कर सकते हो,
जैसे कि 10 डिजिट का चाहिए तो 10 डिजिट स्पेसिफाई करो, मिनिमम 10 डिजिट। ठीक है, आप मैक्स भी डाल सकते हैं, मैक्सिमम उतना ही आना चाहिए, मिनिमम उतना ही आना चाहिए। सो यहाँ पे मिनिमम 10 डिजिट्स आने चाहिए। तो देखो 10, शायद इसको हम लोग इनपुट टाइप टेल नहीं नहीं, किया तो बेटर रहेगा ना। हाँ इनपुट टाइप टेल, इनपुट ये टाइप एक्चुअली टेल, एरोज आ रहे हैं ना इनपुट बॉक्स में। टेल, वो भी चल जाएगा टेल। टेल के लिए आपका आ रहा है, देखो अभी अगर मैं स्ट्रिंग, लेकिन हेलो। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके, मुझे लगा मेरा ही गया इंटरनेट, सर का गया शायद से। हाँ सर का आवाज है। सर लाइट गया था। हाँ दिख रहा है अभी। ओके। हाँ दिख रहा है। हाँ, सो टेल यूज करते हो तो फिर भी आप स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। सो यू कैन यूज, अगर आपको स्ट्रिंग नंबर चाहिए तो आप यहाँ पे मिन डाल दो। ओके, आप सॉरी यहाँ पे मिन, एक्चुअली मिन डालोगे तो नहीं चलेगा, मिन लेंथ डालना पड़ेगा, बट मिन लेंथ भी नहीं चलेगा बिकॉज इट्स अ नंबर। तो आप यहाँ पे आपको कस्टम डालना पड़ेगा, फोन नंबर के लिए कस्टम वैलिडेटर वगैरह बनाना पड़ेगा। मैं आपके लिए वो रख देता हूँ, कस्टम वैलिडेटर कैसे बनाना है मैं बताता हूँ, बट फोन नंबर के लिए आप बना देना, मैं दूसरा चीज के लिए बताता हूँ कस्टम वैलिडेटर कैसे बनाना ओके। है। ओके सर। ठीक है, ये समझा तो ये ऐड कर दो। थोड़ा इसको ऊपर रख देता हूँ। सर ये मोबाइल नंबर्स का भी फॉर्म। हम्म। ओके ओके, कुछ नहीं सर।
सर लाइन 71 में .html वाली फाइल में यहाँ पे हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का पर्पस क्या है? क्योंकि आई ये वेरिएबल है, हम्म तो अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखूंगा इसको तो ये एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होगा। ओके यहाँ पे अगर मैं नहीं लिखता तो दिस इज आई इज स्ट्रिंग, तो आई को आई कंसिडर करेगा, 0 1 2 3 नहीं आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कंट्रोल में ये जो कंट्रोल है इसका देखो, फॉर्म कंट्रोल नेम आए है, 0 नहीं है, 0 ओके। होना चाहिए था ना। तो इसको अगर हम लोग ऐसे करली ब्रेसेस में डालेंगे तो भी नहीं चलेगा क्या, जैसे हम कंट्रोल को डालते हैं वैसे? किसके लिए? करली ब्रेसेस में डालेंगे तो नहीं चलेगा ऐसे भी आई डाल को? सकते हो, वो भी चलेगा, वो भी डाल, ऐसे भी कर सकते हो, दैट इज आल्सो फाइन, ये ओके भी चल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। बराबर। हो गया सबका? ओके गुड, व्हाट अबाउट अदर्स? ऐड मोबाइल नंबर का रिटर्न टाइप कैसे, वो आईडी है ना? कहाँ पे ये? हाँ वही है, यहाँ पे थोड़ी हम लोगों को कुछ करना है, रिटर्न तो कुछ करना नहीं है। ओके ओके, मैंने रिटर्न लिखा है इसलिए हुआ है। यस ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ हम लोगों ने रिएक्टिव फॉर्म्स में जितना कुछ करना था सारा सब कुछ देख लिया। नाउ नेक्स्ट, कस्टम वैलिडेटर कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कस्टम वैलिडेटर्स यू कैन क्रिएट। एक होता है आपका फील्ड बेस्ड वैलिडेटर, मतलब हर एक फील्ड पे, जैसे यहाँ पे हम लोग ने डाला है वैलिडेटर्स और रिक्वायर्ड फर्स्ट नेम के लिए, वैसे हम लोग फील्ड बेस्ड वैलिडेटर बना सकते हैं। और दूसरा टाइप का वैलिडेटर होता है क्रॉस फील्ड वैलिडेशन, मतलब दो फील्ड्स के बीच में अगर आपको वैलिडेशन करना है तो। ठीक है, जैसे कि पासवर्ड, वेरीफाई पासवर्ड ऐसे होता है, वैसे दो फील्ड्स हमारे वैलिडेट करना है तो क्रॉस फील्ड वैलिडेशन होता है। तो अगर वैसे वैलिडेटर बनाए तो कैसे बनाते हैं? सो सी लाइक दोनों भी सेम ही तरीके से बनाते हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में, बट हम लोग दोनों भी देख लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट लेट्स सी हाउ टू क्रिएट योर कस्टम वैलिडेटर। ठीक है, तो क्रिएट अ वैलिडेटर मैं यहाँ पे बाहर ही बना देता हूँ यहाँ पे। फिर बाद में हम लोग उसको मॉड्यूलराइज करेंगे तभी अलग अलग डाल देंगे। सो यहीं पे बना देता हूँ। पहले तो मैं वो देखता हूँ कि हम लोग को वैलिडेटर बनाना क्या है। ओके, तो हमारे केस में अगर आप देखोगे प्रोफाइल फॉर्म में एक फर्स्ट नेम के लिए मैं बनाता हूँ, आप मोबाइल नंबर को बाद में बना लेता हूँ अपने हिसाब से खुद का। ठीक, फर्स्ट नेम के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक ऐड करना है वैलिडेटर, लेट्स से फॉरबिडन नेम। ठीक, ऐसा मुझे फॉरबिडन नेम वैलिडेटर कैसे ऐड करना है, जिसमें मैं नेम जो स्पेसिफाई करूंगा, ओके लेट्स से मैंने बॉब स्पेसिफाई, तो बॉब नेम फॉरबिडन है। ओके, अगर मैं दूसरा नेम स्पेसिफाई करता हूँ तो वो नेम फॉरबिडन है। ठीक, लेट्स से मैं यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन भी डाल देता हूँ, लेट्स से कि ऐसे स्लैश बॉब स्लैश, तो बॉब अगर फील्ड में आता है हमारे नेम में कहीं पे भी तो वो इनवैलिड है। ओके, या फिर फॉरबिडन है, ऐसा कुछ तो। ओके, सो मैं रेगुलर एक्सप्रेशन लेके ही करता हूँ। स्ट्रिंग का तो इजी, आप डायरेक्टली इक्वल इक्वल्स टू से कर सकते हो, रेगुलर एक्सप्रेशन से भी देख लेते हैं। तो फॉरबिडन नेम वैलिडेटर हम लोग को करना है यहाँ पे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे I'll create a file forbidden -name .validator.ts। देख सकते हैं वैलिडेटर, इसलिए मैंने .validator.ts लिखा है। नाउ वैलिडेटर बनाने के लिए कुछ सिंटैक्स फॉलो करना पड़ता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्रिएट अ फंक्शन। सो आई क्रिएट अ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इसके लिए बिकॉज फंक्शन को बाहर एक्सपोर्ट करना है, फंक्शन एंड देन वैलिडेटर नेम, लाइक फंक्शन का नेम, एंड इसके अंदर वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट पैरामीटर, लाइक तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। सो आई से नेम आर रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, और इसका टाइप होगा रेग एक्सप बिकॉज रेगुलर एक्सप्रेशन है। ओके, और जो फंक्शन बनाओगे उसका रिटर्न टाइप होना चाहिए, ये फंक्शन है आपका, उसका रिटर्न टाइप होना चाहिए वैलिडेटर
fn, okay, validator fn. Validator fn मतलब validator function, this is coming from your angular forms. okay, अभी validator fn है क्या, ये रिटर्न टाइप होना चाहिए, राइट? सो हम लोग को इसके अंदर कुछ तो रिटर्न करना है, ये हम लोग को पता है, बट क्या रिटर्न करना है? लेट्स गो, अगर आप इस पे कंट्रोल क्लिक करते हो ना, आपको दिखेगा उसका डिक्लेरेशन। तो ये एक्चुअली है एक फंक्शन, ओके, ये फंक्शन है जिसका बेसिकली जिसमें एक पैरामीटर होगा कंट्रोल एंड जिसका रिटर्न टाइप होगा वैलिडेशन एरर्स और नल। तो ये जस्ट आप कॉपी कर लेना और यहाँ पे पेस्ट कर लेना बस। ये फंक्शन है इसीलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एरो फंक्शन लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज मैंने यहाँ पे कुछ फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखा इसके लिए। okay, so I can directly write arrow function, अगर फंक्शन लिखना है तो फंक्शन कीवर्ड लिखता हूँ, ठीक है, टोटली फाइन। अभी ये एक्चुअली हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए वो एरर दे रहा है, वैलिडेशन एरर। तो इसमें अगर आप देखोगे, सो ये एक्सेप्ट करता है कंट्रोल का ऑब्जेक्ट। कंट्रोल का ऑब्जेक्ट मतलब क्या आएगा, जिस कंट्रोल पे मैंने ये वैलिडेटर लगाया दैट इज फर्स्ट नेम, इसका ऑब्जेक्ट हम लोग को यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, आप देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल लिखा है, मैंने आपको बोला था एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल इज अ पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस। यहाँ पे आपका एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल बनेगा, दैट मीन्स आप किसी भी कंट्रोल पे लगा सकते हैं, ओके, ग्रुप पे भी लगा सकते हैं, इसके भी लगा सकते हैं, एरे पे भी लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक्सेस करना है कि यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल होगा, उसका वैल्यू लेना है बस, ओके, एंड इट शुड रिटर्न वैलिडेशन एरर्स का ऑब्जेक्ट और नल। ओके, सो लेट्स से मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए रिटर्न नल कर देता हूँ, ओके, तो आपका एरर नहीं आएगा, अभी यहाँ पे एरर नहीं है। बट व्हाट इज दिस वैलिडेशन एरर्स ऑब्जेक्ट? जब आप नल रिटर्न करते हो ना, दैट मीन्स योर फील्ड इज वैलिड, आपका फील्ड वैलिड है। अगर मैं वैलिडेशन एरर्स को ऑब्जेक्ट रिटर्न करता हूँ तो फील्ड इज इनवैलिड, इसीलिए वो दो टाइप से, आइदर नल और वैलिडेशन एरर्स का ऑब्जेक्ट। अगर नल है तो फील्ड इज वैलिड, अगर वैलिडेशन एरर्स है दैट मीन्स फील्ड इज इनवैलिड। अभी वैलिडेशन एरर्स क्या होता है, कंट्रोल क्लिक करोगे फिर से तो आपको दिखेगा इट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ की वैल्यू पेयर वेयर की इज अ स्ट्रिंग एंड वैल्यू कैन बी एनीथिंग, ओके, so it's a object of key value pair where key is a string and value can be anything. So यहाँ पे हम लोग को जस्ट पहले टेस्ट करना है, चेक करना है कि वैल्यू है कि नहीं। so हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है, हाउ डू आई सर ये गेट? वाला थोड़ा फास्ट हो रहा है सर, नहीं समझ रहे। ओके, ठीक है, चलेगा, अभी फिर से बता देता हूँ। वैलिडेटर अगर आपको बनाना है तो वैलिडेटर बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो फंक्शन बनाना। तो फंक्शन बनाने के लिए हम लोग को एक फंक्शन में यू हैव टू रिटर्न वैलिडेटर फंक्शन का ऑब्जेक्ट, ओके। अभी ये वैलिडेटर फंक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है तो हम लोग को रिटर्न करना पड़ेगा कुछ तो, राइट? अभी रिटर्न क्या करना है वैलिडेटर फंक्शन का ऑब्जेक्ट, तो हम लोग इस पे जाते हैं, देखते कि ये है क्या। तो ये जो है ना, दिस इज नथिंग बट अ फंक्शन, ये एक इंटरफेस है, इंटरफेस में एक फंक्शन डिक्लेयर किया। सो हम लोग को जस्ट ये कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, रिटर्न में हम लोग को ये रिटर्न करना है। बट व्हाट इज दिस रिटर्न? ये रिटर्न कर रहे हैं ना, वो एक फंक्शन है, राइट? ये फंक्शन मतलब ये एरो फंक्शन आप कंसिडर करो ऐसे, या फिर यू कैन राइट फंक्शन लाइक दिस, ऐसे फंक्शन लिख दो और आगे ये लिख देना, ओके। सो दिस इज अ फंक्शन which accepts control and returns validation errors. Actually यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग फंक्शन के अंदर फंक्शन लिख रहे हैं, ओके, देयर इज यहाँ पे बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ फंक्शन के अंदर फंक्शन लिख रहे हैं, ओके। मैंने प्रीवियस केस में सिर्फ फंक्शन निकाल के यहाँ पे एरो फंक्शन लिख दिया, ओके। यहाँ पे जो कंट्रोल जो मिलेगा ना, जब आप वैलिडेटर ऐड करोगे किसी कंट्रोल पे, तो जो कंट्रोल है दैट इज नथिंग बट फर्स्ट नेम, तो जो कंट्रोल मिलेगा वो फर्स्ट नेम का ऑब्जेक्ट होगा, ओके। तो फर्स्ट नेम अभी यहाँ पे रिटर्न करना है, तो मैं यहाँ पे पहले रिटर्न नल कर रहा था, ओके, बिकॉज एरर निकालना चाहिए इसके लिए। बट जब आप रिटर्न नल करते हो तो आपका वैलिडेटर वैलिड होता है, ओके, वो वैल्यू मतलब जो आप यहाँ पे वैलिडेटर बोलते हो वैलिड वैलिड होगा, ओके। और अगर रिटर्न नल नहीं करते तो आपका वैलिडेटर इनवैलिड है या फिर फील्ड इनवैलिड है, ओके। तो अभी हम लोग इनवैलिड कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए हम लोग को ये कंट्रोल का पहले तो वैल्यू लेना पड़ेगा। So let's get the value of control equals to control dot, कंफ्यूजिंग है सर थोड़ा एक्चुअली। confusing है, हाँ, ट्रिकी जा रहा है थोड़ा। ठीक है। एक काम कर लेते हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में ही लेते हैं, आपको शायद पूरा ये हुआ रहेगा।
बर्डन हुआ रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया आज सर। वो ज्यादा हो गया। हाँ एक्चुअली वो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली किसको क्या बोलते हैं और किसके लिए क्या यूज करते हैं। ठीक है, चलेगा, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही लेते, क्योंकि आज आई थिंक आज बहुत कुछ किया है, इसके लिए आपको सब ये आगे का बाउंसर जाता रहेगा। ठीक है, नो वरीज, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं इसको। ठीक है, कल है सर या परसों है नेक्स्ट? परसों है। ओके सर। ठीक है, चलो चलो स्टॉप हियर। थैंक यू। इसमें कुछ डाउट्स है? रिएक्टिव फॉर्म्स कैसे बनाते हो और उसमें क्या वैलिडेटर वगैरह कैसे लगाते नो सर। हो? ओके, ठीक नहीं है, चलेगा। सो मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में ही लेता हूँ, अभी कुछ करता नहीं इसमें, जस्ट ठीक है, चलो देन। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। गुड नाइट सर। थैंक यू। Thank you, sir.